तरबूज वाले भाई, मेरा गाना लगा दो। तरबूज वाले भाई क्या है उनका नाम? मैं उनसे कुछ पूछने लगी हूँ। आजकल आप सिर्फ तरबूज की बोली लगा रहे हो, बाकी फ्रूटों से छुट्टी? हाँ जी, बाकी फ्रूटां तो छुट्टी है मेरी भैन। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ 270 ਏਕੜ ਤਰਬੂਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। वाह माशाल्लाह। ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ओके। ਔਰ ਕਾਲੀ ਨਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਫਾਨ ਕੈਸਰ। 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਰਬੂਜ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ, ਹੈਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ तरबूज का सीजन। ओके। ये वजाहत कर दें कि डॉक्टर अफान ने ये नहीं कहा कि सारे लोग ऐसा करते हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा होता है। उन्होंने जो कहा है ना जी, सुना तो सबने है ना। उन्होंने ये नहीं अंदर कहा, उसकी वीडियो चेक करें ना, ये नहीं कहा कि सारे नहीं करते। उन्होंने ये कहा कि तरबूज में इंजेक्शन लगता जिहदी वजह तो हैजा हुंदा पिया। इस टाइम तरबूज ट्रेंडिंग च आ, सिर्फ और सिर्फ तरबूज। हर बंदा तरबूज ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। गर्मी इन्नी पै रही है कि तरबूज खाण ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ करता। ऐसा ही है, ठीक है ना जी। उन्होंने ट्रेंडिंग च चीज देख के ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ करती। नहीं क्यों, देखें मैंने सच्ची बात है कि मैंने भी 2-3 साल पहले अपनी आंखों से एक दुकानदार को ये इंजेक्शन लगाते हुए देखा था सैक्रीन का। देखें जी, आप जैसे मम्मी डैडी लोग जो जाते हैं ना। मैं मम्मी डैडी नहीं है भाजी, मम्मी डैडी बनाई जा रहे हैं। सिर्फ डैडी डैडी हैं। डैडी डैडी हैं। अच्छा जी, मेरे कहने का मतलब है ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੁਰਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਤਰਬੂਜ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਤਰਬੂਜ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਖਾ ਬੇਟੈਮਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ओके। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਖਾਓ, ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਖਾਓ, ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਖਾਓ, कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। पानी नहीं पीना, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ क्योंकि इसमें खुद 92% वाटर होता है। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੁਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ 90% ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਸੀ ਜਾਂ 6 ਸੀਸੀ ਜਾਂ 10 ਸੀਸੀ ਕਲਰਫੁਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂ? ਉਹ ਕੱਚਾ भी वाइट यार एक मिनट ठहर जाए, ब्रेक लगाए रामे साहब। हाँ जी, दूध भी तो पानी होता है ना, दूध में भी तो पानी डालते हैं। ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਤਰਬੂਜ ਲੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਟਾਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਰੀ ਬਾतें ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸਕੋ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਵਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 2024 ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ओके। ਡਾਕਟਰ ਅਫਾਨ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਮੰਗਾਓ, ਹੁਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਆਹ ਮੈਦਾਨ, ਟੀਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਨੇ ਆਪਾਂ। इसमें दूध कहाँ से आ गया यार? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਮੰਗਾਓ, फ्लो देखे यार। हाँ जी, तुसी टीका छाती हो मंगाओ। जाती है, ऐ हो जाती ਜੇ है। ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਮੰਗਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੰਗਾ ਲਓ ਟੀਕਾ। अच्छा जी, ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲ ਵੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। लाएं जी, ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਜਜ਼ਬ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਫਾਨ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਈ ਲਾਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਰ ਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। कॉन्फिडेंस चेक करो। हाँ कॉन्फिडेंस है। ਓਏ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। कहानी पा ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਆਹ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤੀਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਲ ਤਰਬੂਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਅਗਰ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ,
ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਓਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ओके गुड। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰਬੂਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟੀਕਾ। हाँ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਬਾਈ ਵੀ ਇਹ ਤਰਬੂਜ ਵਿਕਦੇ ਆ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਫਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਮਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲਾਲ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਲਾਲ ਵੀ ਲਾਲ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਵੀ ਲਾਲ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ लाल। मियां साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो पिछले दिनों आपने बयान दिया था कि मुल्क बदतरीन माशी बहरान का शिकार है और हमें अपनी शाह खर्चियों में कमी लाना होगी, उसका अमली तौर पे तो कोई मुजाहरा नजर नहीं आ रहा। कहाँ है, कहाँ आपने कोई ऐसी सादगी अपनाई है? मियाँ साहब मेरी बात सुने, ये मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि जब मैं आपके शो में आ रहा था, मैं अपने त्यारे पे नहीं आया, बल्कि मैं गुजर त्यारे पे आया हूँ। गुजर त्यारे? जी, गुजर त्यारे पे, वो जिसका मुंह और तरफ होता है और उसकी टेल और तरफ होती है। बस पे आई है आप इस्लामाबाद से? गुजर त्यारा बस नहीं कहते ने, और F16 ਦੇ ਉੱਤੇ गुजर लिखा होता है, और जिसमें VCR लगा होता है LCD पे। अच्छा, फिल्में देखते हुए आए हैं? नहीं नहीं जुनेद साहब, फिल्में नहीं, वहाँ फिल्म चल ही नहीं रही थी। वहाँ तो एक गाना रिपीट पे लगा हुआ था। अच्छा। वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। हालांकि ड्राइवर को पता नहीं था कि मैं उसकी बस में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी वो गाना चल रहा था। सारी सवारियाँ बड़े निभाग से वो गाना सुन रही थी। राग पहाड़ी में क्या मधुरता, उस गाने ने अपना सहर तारी किया हुआ था। सारियाँ सवारियाँ शशदर होके वो गाना सुन रही थी। कौन सा? ओ चंगा लगदा मियां शबाज़े, कहती पूरी कौम ते आवाज़े, ओ सानू शबाज़ दे नाल प्यारे मियां दे नारे वजने ही वजने ने, दोबारा रंग सजने ही सजने ने, मियां दे नारे वजने ही वजने ने, दोबारा रंग सजने ही सजने ने। वाह, जबरदस्त। आपको पता है कोके से ज्यादा हिट ये गाना है। आपने सिर्फ कोके को हिट कराया कह कह के। और जुनेद सलीम साहब, एक औरत की गोद से उसका बच्चा गिर गया, उसने अपना बच्चा नहीं उठाया, वो सिर्फ गाना सुनी जा रही थी और साथ साथ ऐसे कर रही थी और साथ साथ कभी शेर की तस्वीर, कभी मेरी तस्वीर, कभी मेरी तस्वीर। तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर? हाँ, वो भी एक दफा गुजरी है, वो भी गुजरी है। हाँ, उनके बगैर आपको पता हमारा गुजारा ही नहीं है। बड़े मियाँ साहब की शफकत से ही मैं इस सीट पे बैठा हूँ। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने सही कहा, सही कहा। मियां साहब, हाँ जी, बस एक दफा बस में बैठ के इस्लामाबाद से लाहौर आने में आपको लगता है कि कौमी खजाने में इतनी बचत हो गई है, सादी इख्तियार कर लिया आप? सुहाना जी, और क्या नहीं हुई बचत, लाखों रुपए बचाए हैं। त्यारे ते नहीं आया, गुजर त्यारे ते आया। त्यारे ते लखां दा पेट्रोल पै जाना सी, इत्थे सिर्फ 450 रुपया दिता है ते पहुंच गया लाहौर। जुनेद सलीम साहब, आपको एक और खबर दे दूं, 450 भी नहीं भरा मैंने। अच्छा। जब मेरे पास क्लीनर आया है, उसने कहा किराया, मैं कहा स्टूडेंट। मुझे कहा ABC सुनाओ, मैंने थोड़ा सा पल्लू हटाया, वो डर गया। किफायत शारी की है जुनेद सलीम साहब मैंने। देखें, PM हाउस में जितने भी माली थे सबकी छुट्टी करवा दी है। वाह, अच्छा। हाँ जी, तो कौन देखभाल करता है पौधों की? मालियों का काम PM खुद कर रहा है अब। अच्छा। सुबह 5 बजे उठता हूँ जबरदस्त। और गोडी खुद करता हूँ। छोटी रंबी मंगवाई है, यू नो छोटी रंबी। छोटी रंबी जस्ट लाइक जैसे परवेज खटक का मुंह नहीं है, परवेज खटक के मुंह जैसी छोटी रंबी होती है, इसके साथ गोडी करता हूँ। और सुबह सुबह वैसे गोडी के लिए आप अपनी उंगली से भी काम ले सकते थे। ये सब नहीं, क्योंकि उंगली के नाखून में मिट्टी फंस जाती है और मैंने तकरीर करनी होती है। मिट्टी वाली तकरीर करता PM वैसे भी अच्छा नहीं लगता। जुनेद सलीम साहब, बचत करना कोई सौखा काम नहीं है। अच्छा। आपको पता है, जब मैं कल गोटी कर रहा था तो वहां पर एक चीज ऐसे ऐसे करके निकलना शुरू हो गई। मैं रौला पाता, मैं कहा सांप 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 सांप। सारी सिक्योरिटी फौरी इकट्ठी होकर मेरे पास आ गई। सबने कहा मियाँ साहब, मैंने कहा उधर देखो सांप, वो देखो सांप।
सब ने मुझे कहा मियाँ साहब ये सांप नहीं, ये गडोया है, ये गडोया। मैंने कहा है गडोया? हमने रोटी क्या सस्ती की, ये रोटियां खा खा के गडोया भी सांप जिड्डा हो गया है। और गडोया भी नहीं साहब, मैंने वो जाया नहीं किया, उसको मैंने अपने मर्तबान में डाल के अंदर रख लिया है। जब मैंने गडोए को प्रिजर्व किया, वहीं से कौमी इक्तिसादी तरक्की का एक नया बाब दिमाग में खुल गया। मेरे चश्मे तसव्वुर ने देखा कि अगर इस गडोए की फार्मिंग की जाए तो एक गडोए से 100 गडोया होगा, फिर उससे लाख गडोया होएगा, और फिर उससे लाखों गडोए हो जाएंगे, लाखों बरमार गडोए की हो जाएगी। और जब बरमार गडोए की हो जाएगी फिर लेकिन मायूसी के बादल छा गए। एकदम मैं मायूस हो गया। क्यों? कि एक गडोया तो कला है, इसकी तो गडोई कोई नहीं। मैं साहब, मैं तो समझता कुछ नहीं मायूसी को, मायूसी मेरे लिए नहीं बनी। फिर मैंने वही शेर कहा, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, एड़ियां रगड़ने दे। शॉट बना रहा कोई सीधा वतन की मिट्टी। कैमरामैन मैंने इंजन कर रहा कि हाँ बना रहा, उन्होंने भी अपनी सैलरी की फिक्र है, उन्हें पता है कट ना देन। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, चश्मा यही से निकलेगा। फिर एक आइडिया नमूदार हुआ है माइंड में। अच्छा। अगले दिन मैंने रंबी उठाई है सुबह 5 बजे, जहां से गडोया निकला था वहीं जाके रंबी मारी है और एक आवाज दी है, गडोई 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 किथे? गडोई कहाँ हो? गडोई आ जाओ, कौमी खजाने को तुम्हारी लोड़ है, कौमी खजाने को तुम्हारे बच्चों की जरूरत है। अजीम माएँ अजीम कौम बनाती हैं, और ये कौम जिस दिन अपने पाँव पे खड़ी हो गई उसी दिन फिर साहब, जब आपको पता मैंने आना होता है, बंदा 3-4 माइक रखवा देता है। मुझे आज माइक से ज्यादा जरूरत इस बात की महसूस हो रही है कि आपके पैरों में साइकिल के पैडल होने चाहिए थे। और आज पैर भला क्यों ज्यादा स्लिप हो रहे हैं। जिस बस में मैं सफर कर रहा था उसकी साथ वाली सीट पे एक तुआडेर का पेंडू बैठा सी, देसी घ्यो दा पूरा डब्बा लेके, वो आप सौ गया, देसी घ्यो दा डब्बा रुड़ गया। मैं काफी देर उन्होंने पूछता रहा पिच पिच कितों आउण डई है, मेरे पैर एक जगह ते खलोण नहीं डे। मैं जो बस तो उतरिया, मैं एकदम तिलकियां डिगियां, कैलेंडर ने पिछों हाथ देता, उन्हें कहा पीएम अगर आप गिर गए तो इस कौम का क्या बनेगा। जबरदस्त यार, वाजी वाह, वाजी वाह। मैंने उस कैलेंडर को फौरी 5 रुपए वाला ठीपा दिया। वो तो बंद नहीं हो गया? मैंने भी ऐसे तो देता भी बंद हो गया। यही तो सादगी और कफायत शादी है। 5 रुपए के ठीपे बचेंगे, कौम का खजाना ऊपर आएगा। और आपको पता है 5000 वाला नोट बंद कर रहा हूँ, पाबंदी लगा रहा हूँ। क्यों? वो ऐसे फेंकता ही कोई नहीं। ये बात मैंने एज बबू राना कही है, इसका पीएम से कोई ताल्लुक नहीं। सोना सियाल जी, कफायत शायरी का दामन हमने कभी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। आपको पता है पिछले दिनों मैंने हॉकी टीम को जो जोहराना दिया था, वो जो अजलान शाह साहब, अजलान शाह साहब से मुझे याद आ गया। अजलान शाह साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बड़ा पुराना ताल्लुक है। आपस में दोनों हॉकी खेलते रहे हैं। वो कप जो टीम जीत के आई है अजलान शाह साहब का, जीत के तो नहीं आई, फाइनल में पहुंची थी। यार फाइनल पहुंचना सौखी गल होती है। अच्छा चलो ठीक ठीक। एक गिरी हुई टीम फाइनल में जा रही है, शुक्र मनाओ। उनको जब मैंने जोहराना दिया तो किसी के लिए मैंने मुर्ग मुसल्लम, देगा और कोरमे नहीं पकाए, सबको 2 तूतरू 1 सलांटी का पैकेट लेके दिया। तूतरू मीन्स पापड़, वो पापड़ जो बचपन में पकड़ के हम चांद भी देखा करते थे। अच्छा मुबशर भाई, मैंने आपसे बात करनी है, मैंने डरना डरना कोई नहीं है, ठीक है? मेरे को सींग निकले हुए यार, आपने डरने का। फोन पीता हूँ अपना, क्या करता हूँ मैं। ये आजकल इन्हें बड़ा डर लथया है। नहीं अपना हरकत ठीक करन ना, अपने मेरे नाल की ताल्लुक है ओदा, अपने आप को ठीक करन। यही गल मैं समझाने पिछले 3 महीने तो। देखो एक बात बताएं, मैं जितनी भी मेरी आपसे मुलाकातें, जाती मुलाकातें हैं, हमारी निजी महफिलें अपनी जगह, मेरी कभी ये जरूरत नहीं हुई कि मैं आपसे ये सवाल पूछ सकूं जो मैं आज पूछने लगा हूं। एक तरफ तो आप कहते हैं जनाब कि मैं अवारी होटल में मैं टॉयलेट भी साफ करता रहा हूं, और मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अवाइल में मैं सर्वाइवल के लिए समोसे भी बेचता रहा हूं। दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट कॉलेज और एचएसएन कॉलेज, जिसका एक आम आदमी क्या अमीर आदमी भी सिर्फ ख्वाब देखता है, उसमें पढ़ते रहे। ये वक्त का फ़र्क है या आगे पीछे हुए? नहीं मेरी वालदा की तरबियत है, क्योंकि मसलन मैं
जब इंटरमीडिएट में आया था, मुझे क्रिकेट का शौक था, तो मैंने एक एसपी का बल्ला खरीदा था। ज़हीराबाद हाँ, उससे उसका खेलता था, बहुत महंगा होता था। तो ज़हीराबाद खेलता था उससे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने अय्याशियाँ करनी है तो खुद कमाओ, अच्छा, जो तुम्हारी औकात है उसमें रह के करो, वरना मैंने तो तुम्हें ये 15 रुपए वाला बल्ला लेके देना है। अच्छा। उनको दिखाने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए, टू बाय दैट बैट आई हैड टू डू दैट जॉब। अच्छा, इसका मतलब है कि ये ऐसी बात नहीं थी कि आपके पास पैसे थे नहीं। नहीं, मेरे आपकी घर वालों के खुददारी पास थी तो कि थे, लेकिन वो मुझ पे देना नहीं चाहते थे। अच्छा, नहीं, वन वे और द अदर यू कैन से कि ये आपकी खुददारी थी। मैं कैंट में रहता था यार, अपना मेरे अच्छा। बाप के नाम पे सड़क थी, अभी भी है, लुकमान अच्छा, स्ट्रीट। अच्छा, अच्छा। मेरे फादर के नाम पे है। ही वाज अ वॉर हीरो। 65 की वॉर में मेरे फादर की जो यूनिट थी 28 मीडियम, उसने 6 जोड़ियां कैप्चर किया था। अच्छा, और मेरे फादर उसको कमांड कर रहे यार थे। जबरदस्त। जुनैद साहब, आपको देख के मुझे दुख हो रहा है आज। खैरियत है? यार आप अपना इतने बड़े चैनल के, अब आप रूहे रवा भी हैं, सब कुछ है यार, आपकी दुबई में कोई प्रॉपर्टी नहीं निकली। आप किस काबिल हैं यार, लो मिडिल क्लास इंसान है आप, बिल्कुल कमीन अपनी। यानी आपका कोई फ्लैट ही नहीं है वहाँ पे यार, कोई 2 लाख दिरहम का भी यार, कमाल है जुनैद साहब। अच्छा, हमारे तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं ना करता। हाँ। आपके बताएं, आपके निकले हैं कि नहीं? आपके बारे में तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना। मेरे में और फिरौन में एक बात मुश्तरक है। अच्छा, फिरौन की भी मिस्र के अलावा कहीं प्रॉपर्टी नहीं थी। अब वो लाहौर के करीब है, कहीं कॉर्नर का प्लॉट है। नहीं, मेरी मिस्र भी नहीं, अपने मुल्क भी है। ਇਹ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ 4 ਊਂਠ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਚ। जुनैद साहब का ये आर्टिस्ट भी दुबई से ही निकला है। हाँ, ऐसे इस्लाम से रुड़ता है उधरों। आपके बाएं हाथ भी जो बैठे हैं वो भी दुबई से तशरीफ लाए हैं, माशाल्लाह। और जो दाएं हाथ बैठे हैं ये भी। तो मुझे पहले पता हो तो मैं तबरुक से मिलता, अपना झुक के मिलता। ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਬਈ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। और वापस ऊपर करा के आए थे। आपकी पूरी जिंदगी जो है साफ्ती जिंदगी, वो वक्तन फवक्तन कोई कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। अगर मैं आपको कहूं कि आप एक कंट्रोवर्शियल एंकर हैं तो आप माइंड करते हैं बात? नहीं, अच्छा, इसका मतलब है कि मैं ओरिजिनल हूँ। अच्छा, ओरिजिनल होने के लिए कंट्रोवर्शियल होना जरूरी नहीं, है मेरे से या पहले कोई नहीं कंट्रोवर्शियल था। होने के लिए अब अगर original? आप होंगे तो आप मुबश्शिर लुकमान होंगे, ओ, अब आप कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको फर्क बताता हूँ। जी। मेरी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो क्या है कि जो बात मैं खुद बात कर लेता हूँ या मैं मान लेता हूँ, वो मेरे गले पड़ जाती है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली है, तो लोग कहते हैं ये कहाँ से आ गई। अब मैंने कहा ये जहाज में उड़ा रहा हूँ, तो कहते हैं ये कैसे शौक पूरा करे। और मैं आपको बड़ी क्लियर एक बात बताऊँ, गुड, जो ये कहता है कि पैसा जरूरी चीज नहीं है, वो दुनिया का सबसे झूठा आदमी है। झूठा आदमी है। पैसा सेहत के बाद सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल। इसके बगैर आप अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकते। लेकिन हलाल का, तो ऑब्वियसली हलाल का। मैं हलाल अपना का ये कह रहा हूँ कि डकैती करें। आप आप तो भाग भी नहीं सकेंगे डकैती करके वहां से यार। आपको मैं ये एडवाइस कैसे दूंगा यार, तुसी तो कद भी नहीं टप सकते उधरों यार, गेट के अंदर फंस जाओगे। आपने मुझे कहा घिसट घिसट के चलते हुए देख लिया है। इमेजिन करें कि जुनैद सलीम डकैती करके भाग रहा है, अब आप सोचिए कि कैसा लगेगा। ऐसी अफसोस की बात है, आप मेरे बारे में इमेजिन नहीं करवा रहे हैं तो क्या करवा रहे हैं? जो मैं आपको क्या एडवाइस कर रहा जो हूँ, काम हलाल की हमारे कर रहा हूँ ना। सियासतदान कर रहे हैं उनको करने दें। ये कमाल के मुसलमान है यार, अपना हर गलत काम करना है, बाहर जाके फिर कहना यार हलाल गोश्त है यहाँ पे। है देखो यार, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾ ਜਾਣੇ। और जेदे चो लाइटा निकल दिया है। ये जो आपकी जिंदगी में जो हम कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं, तो वाकईतन मेरा ख्याल है कि हर 6 माह बाद अगर मुबश्शिर लुकमान की कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आती तो पूछते हैं कि यार आजकल कितने होता है मुबश्शिर। 6 माह से ज्यादा आपने गैप डलने नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। नजर तो ना लगाई यानी फिर आप उस जो भी कंट्रोवर्सी आती है उस पे आपकी तरफ से बड़ा एक रिएक्शन सामने आता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद या आप खामोश हो जाते हैं या आपके जो मुखालिफ होता है वो खामोश हो जाता है। आप जिनको सहाफी समझते हैं, मैं तो उनको सहाफी जूते की नोक पे लिखता हूँ। मैं तो माजरत के साथ उनको सहाफी मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, मेरा एक केस हुआ, मेरा और मेहर बुखारी का दुनिया टीवी पे है कि जनाब मलिक रियाज का एक इंटरव्यू था। 3 महीने कितने चैनल्स के कितने एंकर्स ने हमारे ऊपर शोज किए, हमारे पर खबरें चली, कितने कॉलम लिखे गए। किसी एक एंकर को इतनी तौफीक नहीं हुई कि मेरे से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले ले कि हुआ क्या था। तो डरते थे आप? नहीं, 1 मिनट कौन सा डरते थे, रोज रगेद रहे थे। ये हमें सहाफत से कहेंगे, ये तो अपना लोगों के दफ्तरों में जाते हैं, वहीं से पियानो का पेन उठाते हैं, वहीं से कागज पकड़ते हैं, उन्हीं से खबर पूछ के लिखना शुरू करते थे। सर जी
वो बच्चे ने स्कूल से कराना है सर। तो ये कैसी सहाफत है कि आप लोगों को एजुकेट ही नहीं कर सकते? आप ये नहीं बता सकते ये हाउसिंग सोसाइटी जो है 2 नंबर है, हाँ, इसमें पैसे ठीक है। मत लगाओ। बिल्कुल ठीक बात। सहाफत वो होती है जिसमें आप लोगों को एजुकेट करे। सनसनीखेज खबर सहाफत नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप अपनी खबर को डाइजेस्टेबल बनाना चाहते हैं तो उसकी जाहिर है कि हर जर्नलिस्ट है या हर जो एंकर है वो अपनी प्रोडक्ट को सेलेबल बनाना चाहता है। तो अगर वो सेलेबल डिसेंट लिमिट्स में रह के बनाया जाए फिर तो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन हाँ, अगर उसमें गैर ज़रूरी सनसनी यानी अपनी आप सेलेबल प्रोडक्ट है उसको ठंडा करके बेचेंगे तो कोई भी नहीं लेगा। मैंने सच बोला। मैं वोट डालने गया इलेक्शंस में, लोगों ने मुझसे पूछा आपने किसको वोट डालना है, मैंने कहा सिर्फ पीटीआई को। मैंने कहा मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, उसको वोट डालूंगा। मैं लोगों को ऑन एयर बता रहा हूँ कि ये मेरी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, मेरे तज्जिए में इस आंसर को शामिल कर लेना, उससे अलग करके मैं ये ना समझना कि मैं न्यूट्रल ये तज्जिया। हालिया इलेक्शन की बात नहीं, पिछले अल्लाह ना करे कि हालिया इलेक्शन अच्छा, मैंने वही दिया हो। पूछ रहा हूँ। तो नहीं, गलती जब होती थी अभी अपना दौरे जहालत की बात कर रहा हूँ मैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा ओपनली कह, अभी मैंने नहीं दिया ना उसको, तो मैं अभी भी मान रहा हूँ कि नहीं दिया। ठीक है ना? अगर आप मुझसे पूछें इस वक्त सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है जिसको वोट देना चाहिए था, मैं आपको वो भी राय दे दूंगा। मैं इधर तो घुमाऊंगा नहीं। दे दें। जमात इस्लामी। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस में एक बात याद रखिएगा, एजुकेटेड आदमी की, पढ़े लिखे आदमी की सिर्फ एक पहचान है कि जब उसको दलाइल मिलते हैं वो अपना ओपिनियन बदल लेता है। लेकिन लोग कहते हैं कि इसने दलाइल की रोशनी में नहीं बदला, अपने मफाद की रोशनी में मौक़िफ़ बदला। मैं क्या सेनेटर बन गया था? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जनरली ये समझा जाता है कि इसने अपने मफाद की रोशनी में। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मेरा मतलब है, और जो अपने मफाद का नहीं सोच सकता किसी और के मफाद का क्या सोचेगा? सोचना चाहिए अपने मफाद का। ये भी आप गलत बात है कि आप कहेंगे कि अपने मफाद का नहीं सोच रहा। क्यों नहीं सोच रहा? 4 दिन पहले एक चैनल के मालिक ने मुझे बुलवाया, उन्होंने कहा भाईजान आप हमारे लिए शो करें। मैं कहा भाईजान इतने पैसे मैं लेता हूँ। उन्होंने कहा तो बहुत ज़्यादा ने। मैं कहा फिर रहन दो। कहता तुसी पैसे वास्ते काम करते हो? मैंने कहा और मैं कितने ऐसे करना। कहता है मेरे छोटे बच्चे ने क्या? मेरे कहा मेरे गुरीले दे बच्चे ने, तेरे छोटे बच्चे ने। मेरा मतलब है कि व्हाई डू यू अज्यूम कि हर आदमी का घर खुद से चल जाएगा? बिल्कुल। यू नो, अब मेरे ऊपर आप आके कह देते हैं ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है। वाह जी वाह, खबर तानू मुफ्ती चाहिए थी, मैं खावांगा किधरों। जुनैद सलीम, ये तालियां बाद में मारना, पहले ये बताओ ना, तुम्हें 2 दिन पहले इनवाइट किया था मैंने, स्पेशल तुम्हें अज़मा बुखारी ने इनवाइट किया था यौम तकबीर की तकरीब में, क्यों नहीं आए तुम? जानती हूं मैं, तुमसे बर्दाश्त नहीं होना था ना। नवाज शरीफ की दादो तहसीन से हॉल के दरो दीवार गूंज रहे थे, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होना था ना, इसलिए तुमने ये तकलीफ नहीं की। इतना जला ना करो, नवाज शरीफ दिलों का वजीर आजम बन चुका है। वाह वाह। और तुम वहां आ जाते तो क्या हो जाता? उस दिन तो सरकारी छुट्टी भी करवाई थी, और अगर सरकारी छुट्टी ना भी करवाते तो तुम तो वेले ही होते हो ना। तुम कौन सा छत का लट्टा डलवाने के लिए ईंटें ऊपर ले जा रहे थे? मैडम मैं वाकई बिजी होता हूँ। हाँ हाँ, जानती हूँ कितना बिजी होते हो। सारा दिन वेले बैठ के नून लीग की हुकूमतों में से कीड़े निकालते रहते हो, और अगर कीड़े ना मिले तो अपनी दाढ़ का कीड़ा निकाल के उसमें ऐड कर देते हो और कहते हो बिजी होता हूँ। बिजी तो मरियम नवाज होती है जो 24 में से 26 घंटे अपनी गरीब आवाम की फलाहो बहबूद के लिए काम करती है, सोचती है। ये बताते हुए कौमे में क्यों चले जाते हो कि पंजाब हुकूमत गरीब काश्तकारों को किसान कार्ड दे रही है? कदों बाजी कदों? झूठे फ्रॉडिये,
तुम कहां से काश्तकार हो? तुम्हारे जैसे झूठे फ्रॉडिये मिडल मैनों के खिलाफ ही तो मरियम नवाज जहाज कर रही है। अभी मैंने आते हुए देखा है, तुम तो अपने बाजू पे ददरी का निशान बना के अपने छोटे भाई के साथ सिग्नल पर खड़े होकर भीख मांग रहे थे। मैं क्या पहले तो छुरी पा के मांगता सी, तो छुरी एक दिन आर पार हो गई। छोटा भाई कौन बब्बू? भाई मैं तो साहीवाल गया सी की। अच्छा इलाके वंडे ने साहीवालों मांग के वापस आओ, रस्ते जो काड़े वाले लुट लेंदे ने। सारा गुस्सा उकाड़े थे कट दें। वही घिसी पिटी जुगते किसान कार्ड के फवायद ना सुनना, चश्मे फलक देखेगी। जैसे ही किसान कार्ड आएगा ना तो किसान खुशहाल और निहाल हो जाएगा। जैसे ही किसान कार्ड किसान की जेब में आएगा ना तो किसानों के सब मसाइल हल हो जाएंगे। क्या करेगा किसान कार्ड मोहतरमा, मुझे भी समझा दें। 16,000 रुपए की डीएपी की बोरी मिल रही है, 8,000 से ज्यादा की यूरिया मिल रही है, और वो भी नहीं मिल रही, ब्लैक में भी नहीं मिल रही। क्या करेगा किसान कार्ड आपका? जुनैद सलीम, तुम यूं ही जलते रहना और मरियम नवाज अपना काम जारी रखेगी। नसीम विक्की, तुम गौर से सुनो। जी जी मैडम जी। जैसे ही किसान कार्ड जेब में डालकर खेत में जाएगा ना और पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं रहेगी। वो कैसे? पूछो, तुम पूछो। जी जी। भला क्यों? तुसी चुप रहो जी, तुसी ना विच बोलना। किसान कार्ड देख के फसलों पे बैठी सुंडी जैसे तुम शो में बैठे हुए हो, फसलों पे बैठी सुंडी खुदकुशी कर लेगी। पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं रहेगी। चंगा कीता जी मैडम, सुंडी नु सुंडी दी मौत मारे। स्कूलों में सस्ते करतब दिखाकर बच्चों को पागल बनाने वाले जादूगर एंकर, किसान कार्ड सचमुच में जादू की एक दुनिया होगा। अच्छा। हाँ जी। सारी जिंदगी 3310 इस्तेमाल करने वाले एंकर, वो किसान कार्ड एक गैजेट है, गैजेट। तुम्हें क्या मालूम उसमें कौन कौन से फवाइद हैं? क्या है, कुछ बताएं ना हमें भी। सुनोगे फवाइद? सुन सकते हो तो फिर सुन लो। उसी कार्ड को जब फसलों में स्वाइप करेंगे तो फसलों की गोडी हो जाएगी। वही कार्ड जब ट्यूबवेल के साथ लगाएंगे ना तो बर्न ट्यूबवेल में से भी पानी निकलने लगेगा। ओ कह रहा है। लेकिन मैडम, अगर गंदम की फसल पकी खड़ी हो और काश्तकार गलती से जेब में वो कार्ड डाल के ट्यूबवेल के पास चला गया, पानी आ गया, तो गंदम की फसल तो गई ना। देख लिया ना सबने, मैं कहती थी ना ये वेला बैठकर सिर्फ कीड़े निकालता है। किसान अक्लमंद होगा, जाहिल नहीं होगा, इस काश्तकार की तरह फ्रॉडिया नहीं होगा। बाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਅਜਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਮਲੇ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। अब इधर सुनो और जलो। उसी किसान कार्ड की एक साइड पर धंधे बने होंगे और उसी कार्ड से किसान ऐसे फसल पकड़ेगा और कटाई करेगा। हाय हाय वाह मैडम वाह, क्या बात है। और इस तरह हुकूमत पंजाब फसल की कटाई का खर्चा भी खुद बर्दाश्त करेगी। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त, जबरदस्त। मैडम ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕਾਰਡ ਝਾੜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲੇ। और धोखेबाज मिडलमैन, ट्रैक्टर से याद आया, ओ खेस की डबियों का आउट ऑफ फैशन कोट पहनने वाले एंकर, तुम भी सुन लो।
इस कार्ड के साथ पंजाब हुकूमत इनामी स्कीम भी दे रही है। किसान कार्ड को स्क्रैच करने से ट्रैक्टर भी निकल सकता है, थ्रेशर भी निकल सकती है, और अगर ये दोनों चीजें ना निकली ना तो 50 रुपए का मोबाइल का इजी लोड जरूर निकल आएगा। और तुम उससे अपने छोटे फ्रॉडियों को फोन करके बोल देना की बाजी कि मरियम नवाज की हुकूमत में हमारा दाव नहीं चलने वाला। मैडम ये तो बड़ा काम है वैसे। तुम्हें वाकई नहीं पता कि छोटा फ्रॉडिया कौन है? मैडम अपनी बेइज्जती अवॉइड कर रहे हैं। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। और जिन्नी यदि बेइज्जती होती है कैसा रंग है उड़ता ही नहीं। इधर एक फायदा और भी सुन लो। जी इरशाद। वो किसान कार्ड, वो छोटा सा किसान कार्ड, अपनी जात में एक सोलर पैनल भी होगा जो और उससे इतनी तवानाई पैदा होगी कि किसान अपने ट्यूबवेल भी चला सकेंगे। जबरदस्त यार, जबरदस्त। ये कोई तुम दिल से तालियां नहीं बजा रहे, बल्कि टूटे हुए हाथों से तालियां बजा रहे हो। यूं कह लो कि गोगलुओं पे से मट्टी झाड़ रहे हो। सॉरी, गलती हो गई। तुम लोग तो प्याजों पे से मट्टी झाड़ते हो। ये होती है ताली जुनैद सलीम। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। मोहतरमा ये भी होती है ताली। ये तो इनडायरेक्ट वेल मांगने वाली ताली होती है। वैसे ਬੱਬੂ मैडम ने सही किया। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾੜੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾੜੀ ਹੈ। विक्की अपने हिस्से की जो रोटियां लगानी थी ना लगा चुका है। तुम्हारा कोई दाव नहीं लगा। अब इसी गंदम से तुम तंदूर में रोटियां लगाओगे। विक्की को तो हम वजीरे कुलचा जात लगा रहे हैं।